Hello students. So today we are going to learn about second type of classification of nouns, that is called masculine gender or feminine gender. It is also called as nouns gender. In first and second standard we also called it as he words and she words. ओके, तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में इस जेंडर के जो लेसन्स है वो ही वर्ड्स एंड शी वर्ड्स इस तरह से दिए हैं. और आफ्टर सेकंड क्लास we have given the classification of nouns, it means gender. So we will learn about that gender types. What is meant by gender? So look here, its definition: a noun which shows its gender, that has a male or female, is called as gender. Gender means लिंग, जिसे हम बोलते हैं gender is लिंग. So those nouns which shows its gender, इज इट अ मेल और फीमेल, इट मीन्स ऐसा नाउन जो हमारे सेंटेंस में जो नाउन होता है वह नाउन हमें शो ऑफ करेगा कि वह नाउन हमारा मेल है या फीमेल है, औरत है या आदमी है. इस तरह से जो नाउन हमारा शो ऑफ करेगा उस नाउन्स को हम बोलेंगे जेंडर, लिंग. ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल्स हियर. बॉय, गर्ल, दिस इज अ he words, it means this is a masculine gender. This is a girl, okay, this is a feminine gender, it means this is a she words. These all are he words and these all are she words. So let us learn. Boy, girl, sir, madam, mother, father, king, queen. Also next, cock, hen, bull, cow, lion, lioness, actor, actress. In this way, left side you have given the male sex, it means the gender of he words, and in right side you have given the gender of she words, it means female sex. Okay, so we will learn about these all types, different types of gender types. Okay, it means kinds of gender. So in our grammatical part, the classification of nouns gender, it has a 4 types. So first, masculine gender. Second, feminine gender. Third, common gender. And fourth, neuter gender. These 4 types has a kinds of gender. ये सारे क्या है? लिंग के प्रकार है जो शो ऑफ करेंगे कि वह जो नाउन हमारा सेंटेंस में आता है वो मेल है या फीमेल है. ओके, सो लेट अस वी विल लर्न डीपली ऑफ दैट पर्टिकुलर gender. So let us first here we see masculine gender. What is meant by masculine gender? Those nouns which shows he words, those nouns which shows a male gender. Okay, masculine gender means a noun that shows a male is called the masculine gender, it means gents. Okay, so what are the he words? So let us see the example. Son, brother, hero, peacock. These words are called he words, and these he words divided into masculine gender. It is also called as masculine gender. So let us see the next type, that is feminine gender. So what is meant by feminine gender? It shows the she words. A noun that shows a female is called the feminine gender. It means ladies words. Okay, which word shows the ladies? Okay, that is called feminine gender. For example, girl, heroine, sister, lioness, etc. These are called she words, and these she words are divided include into feminine gender. So what is the difference between masculine gender and feminine gender? Yes, masculine gender shows the male in that sentence noun, and feminine gender shows she words, it means female ladies words of noun in that sentence. अभी ये जो masculine gender है, ये masculine gender वह नाउन्स होते हैं जो मेल को शो ऑफ करते हैं, जेंट्स को शो ऑफ करते हैं. जो हमारे बॉयज़ नेम्स होते हैं या फिर जो मेल्स में आते हैं उसको हम masculine gender बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पे देखो, सन मीन्स बेटा, ब्रदर भाई, हीरो यह भी लड़के का नाम होता है, और पीकॉक
यह भी जेंट्स में आता है, ओके, मेल में आता है। सेम लाइक दिस फेमिनाइन जेंडर ये जो है हमारा वह फीमेल को शो ऑफ करता है, लेडीज़ को शो ऑफ करता है, इट मीन गर्ल्स। सो लुक एट हियर विच आर द शी वर्ड्स। गर्ल मीन्स लड़की, हीरोइन, हीरोइन मीन्स यह भी लेडी है, सिस्टर बहन, लायनेस यह भी फीमेल बताता है, फीमेल शो ऑफ करता है। सो दोज वर्ड्स which included into he words that is called masculine gender, it means male or gents shows that words, okay, and those words which included into she words or female which shows female or ladies, that is called feminine gender. Okay students, hopes you understand the difference between masculine gender and feminine gender. It's very simple. Which word shows the male, that is called masculine gender, and which word shows the female or ladies, that is called feminine gender. Okay, so let us we will learn about the third point, that is common gender. So look here, common gender, it shows either male or females. It means a noun which shows both male and female is called as common gender. वह नाउन सेंटेंस में जो भी नाउन्स आते हैं, अगर वह नाउन हमें शो ऑफ करते हैं क्या, मेल भी और फीमेल भी, उस सेंटेंस में जो भी नाउन्स आएंगे वो मेल भी होते हैं या फिर फीमेल भी होते हैं, इट मीन्स लेडीज़ भी होते हैं या फिर जेंट्स भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं या फिर बॉयज़ भी हो सकते हैं। इस तरह के जो नाउन्स हमें शो ऑफ करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल देखो, फ्रेंड हमारा दोस्त, अभी दोस्त क्या सिर्फ लड़की होती है, नहीं, लड़का भी होता है, ओके। पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति, अभी व्यक्ति को जब हम फॉलो करते हैं तो उसमें लेडीज़ भी आते हैं और जेंट्स भी आते हैं। सेम लाइक दिस टीचर, अभी टीचर में क्या सिर्फ सर ही होते हैं क्या, नहीं, सर भी टीचर होती है और मैडम भी टीचर होती है। इस तरह से मतलब लेडीज़ को भी शो ऑफ किया जाता है और जेंट्स को भी शो ऑफ किया जाता है। इस यहाँ पे ऐसे स्पेशली बताया नहीं जाता कि सिर्फ जेंट्स है या लेडीज़ है, मतलब इस सेंटेंस में जो नाउन्स आएंगे वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेडीज़ या फिर जेंट्स। So it is called as common gender. Look at the more example here. Child, cousin, doctor, artist, farmer, dentist, driver. अभी डॉक्टर जो होते हैं वो भी लेडीज़ भी हो सकती है डॉक्टर या फिर जेंट्स हो सकती है, फार्मर होते हैं वो भी लेडीज़ होती है, जेंट्स होते हैं। इस तरह से दोनों में से कोई भी जब शो ऑफ करता है विदाउट अ स्पेशल नेम, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन जेंडर। In this type of gender, it means common gender, all profession persons will come. इस जेंडर्स में जितने भी प्रोफेशन हैं हमारे, इट मीन्स टेलर, डॉक्टर, टीचर, फार्मर, बार्बर, कॉबलर, ये सारे जो प्रोफेशंस है और हेल्पर्स है वो सारे नाम इस कॉमन जेंडर्स में आते हैं, ओके, अंडरस्टैंड। अब तक हमने क्या सीखा, मस्कुलाइन जेंडर, इट मीन्स विच वर्ड शोज द मेल or gents, okay, it means boys, okay, that is called he words or masculine gender. Which then second, feminine gender, this noun shows as a female, ladies or a girls, it means she words, that is called feminine gender. And third, common gender, this noun shows either male और फीमेल, इट मीन्स मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, उस नाउन्स को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर, ओके। अभी आपको समझ में आया, मस्कुलाइन जेंडर में जेंट्स आते हैं, गर्ल्स जेंट्स या फिर मेल या फिर हम बोलते हैं बॉयज़, ये सारे जिसमें आएंगे वो मस्कुलाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में लेडीज़ आएंगे, औरत आएंगी, गर्ल्स आएंगे, है ना, लड़कियाँ गर्ल्स आती है तो उसमें हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। और कॉमन जेंडर में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, उस वाले नाउन्स को हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, ओके। सो लेट अस लर्न अबाउट द लास्ट जेंडर टाइप, दैट इज न्यूटर जेंडर. So look at here, what is meant by neuter gender? A noun which shows lifeless things, it means neither male nor female, is called as neuter gender. अभी न्यूटर जेंडर में वह नाउन्स आएंगे जो शो ऑफ करेंगे लाइफलेस थिंग्स का, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स का. अब तक हमने क्या देखा, लिविंग थिंग्स देखे. मस्कुलाइन जेंडर में लड़के या फिर आदमी लोग आते हैं, मतलब वो भी लिविंग थिंग्स है. फेमिनाइन जेंडर में लड़कियां या फिर औरत आती है, वो भी लिविंग थिंग्स है. और जो कॉमन जेंडर है उसमें भी
लेडीज या फिर जेंट्स आते हैं, इट मीन्स दोज आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, बट इन दिस टाइप ऑफ जेंडर इट मीन्स न्यूटर जेंडर, हियर lifeless things will come, it means non living things will come, and it means neither male nor female, it means इसमें जेंट्स भी नहीं होंगे, लेडीज़ भी नहीं होंगे, गर्ल्स भी नहीं होंगे या फिर बॉयज़ भी नहीं होंगे, इट मीन्स नॉट नाइदर मेल और नॉर फीमेल, मेल भी नहीं होते हैं और फीमेल भी नहीं होते हैं, जस्ट लाइफलेस थिंग्स विल कम इन दैट जेंडर टाइप, that is called neuter gender. So for example, look at here: house, table, knife, coat, wool, hat, ball, all insects name, and trees also. Here you have given some of the things which has no life, it means non-living things, and these non-living things will come in neuter gender. When we see in our sentences this type of nouns, that time we identify this gender type is neuter gender. Hopes you understand. अभी इन 4 जेंडर टाइप में से थर्ड और फोर्थ जेंडर टाइप, थर्ड एंड फोर्थ, वी कैन अंडरस्टैंड करेक्टली. कॉमन जेंडर इट शोज आइदर मेल और फीमेल, इट मीन्स इसमें लड़के लोग भी हो सकते हैं या फिर लड़कियां भी हो सकती है, उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं. ओके. एंड न्यूटर जेंडर में लाइफलेस थिंग्स आएंगे, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, उसको हम न्यूटर जेंडर बोलेंगे. बट फर्स्ट एंड सेकेंड, masculine gender and feminine gender, when we are going to change its gender, that time we should use some of the rules to make masculine gender into feminine gender, to change its gender. So let us what are the rules, let us see here. रूल्स टू चेंज मस्कुलाइन इनटू फेमिनाइन जेंडर. ऐसे कुछ रूल्स हैं यहाँ पे जो मस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं. वह चेंज करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो हम अभी सीखने वाले हैं. सो लेट अस सी द रूल्स. नंबर फर्स्ट, बाय यूजिंग कंप्लीटली न्यू वर्ड. कंप्लीट न्यू वर्ड का मतलब डिफरेंट वर्ड, न्यू वर्ड वो यूज़ करके उस मस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं. सो लेट अस सी हियर एग्जांपल्स. किंग, KING, किंग मीन्स राजा, एंड क्वीन, उसका फेमिनाइन जेंडर क्या बनता है? क्वीन, इट मीन्स रानी. मस्कुलाइन जेंडर, दीज आर मस्कुलाइन जेंडर, इट मीन्स ही वर्ड्स, इट मीन्स लड़के लोग होते हैं यहाँ पे या फिर जेंट्स होते हैं, इट मीन्स आदमी होते हैं यहाँ पे. और फेमिनाइन जेंडर्स में लड़कियाँ, इट मीन्स औरत लोग जो हमारे जेंडर के टाइप्स में आते हैं वो यहाँ पे आएंगे. सो किंग, दिस इज अ ही वर्ड्स, एंड क्वीन, दिस इज अ शी वर्ड्स. सो वी चेंज दिस masculine gender into feminine gender by using the completely new word. Let us see the next example. Bull, cow. Cock, hen. Boy, girl. Peacock, peahen. In this way we use the new different word to change its masculine gender into feminine gender. Okay, let us see the rule number second. By adding ESS at the ending of that noun. ओके. अभी इस जेंडर्स में हम जो हमारा नाउन यहाँ पे आएगा, मस्कुलाइन नाउन आएगा या फिर ही वर्ड्स के जो नाउन्स आएंगे उसके आगे ESS का यूज़ करके उस नाउन का हम मस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं. सो लेट अस सी द एग्जांपल. LION, lion. दिस इज अ ही वर्ड, दिस इज कॉल्ड मस्कुलाइन जेंडर, lion, and we change its feminine gender into feminine gender by using ESS, lioness. In this way, lion, lioness. Poet, poetess. Author, authoress. Host, hostess. By using this ESS at the ending of this noun, we can change its masculine gender into feminine gender. Okay, so let us see the third rule of the changing masculine into feminine gender. Sometimes the form is slightly changed before ESS is added by dropping the last vowel. कभी कभी हम जब ESS का यूज़ करते हैं तो उसके पहला वाला जो लेटर होता है उसको ड्रॉप किया जाता है. हाउ? लेट अस सी द एग्जांपल्स.
these are masculine genders, it means he words, and here you have given feminine gender, it means she words. So you have given the example tiger, Tiger, tiger. So here we can see the er of that ending noun. Okay, so tiger का हम किस तरह से फेमिनाइन बनाएंगे, tigress, Tig, स्पेलिंग क्या है देखो यहाँ पे मस्कुलाइन जेंडर में Tiger, इस तरह से टाइगर की स्पेलिंग है, दिस इज अ ही वर्ड्स. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज इट्स फेमिनाइन जेंडर, दैट टाइम ये जो लेटर है उसको ड्रॉप किया जाता है और लास्ट लेटर के आगे EWS ज्वाइन किया जाता है. लेट अस सी हियर TIGREWS, टाइग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, गॉड, गॉडेस, एक्टर, एक्ट्रेस, वेटर, वेट्रेस, प्रिंस, princess. In this way, when we are going to change its noun into feminine gender, that time we drop some of the before letters of that ending, or we add more letters of that ending, and we just add EWS to make it change the form of masculine into feminine gender. Okay, hopes you understand. Let us see the next rule. Rule number 4. Some words shows power, horror, biggest meaning of that word. It always shows masculine gender. अभी कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, इस तरह के कुछ नाउन्स आते हैं जो शो ऑफ करते हैं किसका, पावर का, मतलब उसकी ताकत का, हॉरर मतलब डेंजर का, कुछ भयानक ऐसी सिचुएशंस उस वर्ड्स में दिखाई देती है. तो ऐसे जो वर्ड्स आते हैं बिगेस्ट मीनिंग के, बड़ा मीनिंग उसमें इन्वॉल्व होता है, ऐसे वाले जो भी नाउन्स आएंगे तो वह नाउन्स मस्कुलाइन जेंडर में ऐड करना चाहिए. ओके, दिस इज अवर रूल ऑफ 4th. सो लेट अस सी द एग्जांपल. वॉर, डेथ, सन, ओशियन, these all words have a biggest meaning, so it is involved into masculine gender. ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें बहुत बड़ा गहरा मीनिंग होता है, उसका जो अर्थ होता है वो बहुत डीप होता है. सो इट इज़, इसको हमें मस्कुलाइन जेंडर में ऐड करना होता है. ओके, लेट अस सी द 5th रूल. सम वर्ड्स शोज ब्यूटी, सॉफ्ट, स्मूथ एंड स्मॉलनेस ऑफ मीनिंग. दैट वर्ड ऑलवेज शोज फेमिनाइन जेंडर. अभी कभी कभी क्या होता है देखो, कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जिस वर्ड्स का मीनिंग बहुत ही स्मूथ होता है, अच्छा होता है, स्मॉल होता है, सॉफ्ट होता है, ब्यूटी होती है उसमें. तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं तो उसमें उसको हम फेमिनाइन जेंडर्स में ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल मून, पीस, ट्रूथ, अर्थ, रिलीजन, एक्सेट्रा. सो these all examples are included into feminine gender. Okay, hopes you understand. Let us see the rule number 6. All the professions are in common gender. This rule is joined to the common gender. It means जो भी हमारे प्रोफेशंस होते हैं, जो आवर हेल्पर्स होते हैं, वह सारे प्रोफेशंस कॉमन जेंडर में ऐड करना चाहिए. अकाउंटेंट, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, या फिर टीचर, डॉक्टर, कॉबलर, आर्टिस्ट, ओके, कौन से भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस है. अगर ऐसे प्रोफेशंस के नेम हमारे सेंटेंस में आते हैं तो उस नाउन को हम कॉमन जेंडर शोज करेंगे. ओके, सो लेट अस सी द लास्ट एंड 7th रूल. All the lifeless things, it means non-living things, insects and also trees, are in neuter gender. For example, cotton, neem, ant, wool, table, etc. These examples we should include into neuter gender. In this way, today we had learned about the gender types. It's 4 types: masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. Also rules to change masculine into feminine gender. Hopes you understand, students. So you have to read these all pages or listen this video again and again for your more understanding. Hopes you understand. Thank you.